and not to impose, who shows us how to perfect our instruments of knowledge and encourages us in the process, is a teacher. Tomorrow is Teachers' Day, a day kept aside to honor the souls who work every day to make sure that the future is bright for us. शरीरं सुरूपं तथा वाक्भद्रं यशश्चारिचित्रं गुरोरङ्गिपद्मे मनश्चेन लग्नं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवं सर्वमेतादिजातं गुरोरङ्गिपद्मे मनश्चेन लग्नं You may have a wonderful body and a beautiful wife. You may be blessed with vast fame, renowned reputation, and enough wealth to equal Mount Meru. But if your mind is not centered upon the lotus feet of the Guru, what is the use? What is the use? You may have wife, wealth, children, grandchildren. You may have house, relatives, and you may be born in a great family. But if your mind is not centered upon the lotus feet of the Guru, what is the use? What is the use? Vedas with their 6 limbs and the knowledge of all the sciences may be on one's lips. One may have born with the poetic gift and may compose fine prose and poetry. But if your mind is not centered upon the lotus feet of the Guru, what is the use? What is the use? One may be well respected in foreign land and affluent, prosperous in their homeland. One may think that no one can surpass them in righteous conduct and deeds. But if your mind is not centered upon the lotus feet of the Guru, what is the use? What is the use? Yasho Veda Sudanā Pratapa
Prasasti Sarva Karisat Prasada Kirurani Pari Pranishchena Lagnam Emperors and rulers from all over the world may constantly praise you and worship your feet. But if your mind is not centered upon the lotus feet of the Guru, what is the use? What is the use? Your fame may have spread in all directions because of your charity. There may be nothing in this world that you cannot obtain. But if your mind is not centered upon the lotus feet of the Guru, what is the use? What is the use? Your mind may not be attached to worldly pleasure, yogic practices, position, and kingdoms. Your mind may not be attached to your wife, family, wealth, and thus you have developed renunciation and aversion. But if your mind is not centered upon the lotus feet of the Guru, what is the use? What is the use? Your mind does not dwell upon the forest, nor even upon your house, nor in what is to be accomplished. You may neither be concerned with your body, nor with priceless treasure. But if your mind is not centered upon the lotus feet of the Guru, what is the use? What is the use? Teachers' Day is celebrated in memory of India's first Vice President, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Before becoming the Vice President, Radhakrishnan ji served as a teacher and was very popular among his students. After Dr. Sarvepalli Radhakrishnan became the President of India, a group of students came and requested him to let them observe his birthday. Radhakrishnan ji said, "Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th of September is observed as Teachers' Day." As we celebrate Teachers' Day, let us look back with gratitude at the contributions made by some of the most respected teachers and educators of our country. क्या तुम जानते हो भारत की पहली महिला शिक्षक यानी फर्स्ट फीमेल टीचर कौन थी? सावित्रीबाई फुले भारत की फर्स्ट फीमेल टीचर थी। वे एक अच्छी कवियत्री और समाज सुधारक भी थी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नए गांव में हुआ था। सन 1831 में मतलब 190 साल पहले तो भारत पर अंग्रेजों का राज था। हाँ, अंग्रेजों का राज था। जानते हो, उस समय सिर्फ अमीर बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता था और लड़कियों को तो स्कूल भी नहीं भेजा जाता था।
तो क्या सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी? जब सावित्रीबाई की शादी हुई थी ना, उस समय तक वे पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद उनके पति ज्योतिबा ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया था। तब तो ज्योतिबा फुले ही उनके पहले शिक्षक थे। बिल्कुल ठीक। ज्योतिबा फुले एक अच्छे टीचर की तरह हमेशा सावित्रीबाई का हौसला बढ़ाते रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने सावित्रीबाई का एडमिशन एक ब्रिटिश स्कूल में भी करवा दिया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सावित्रीबाई ने लड़कियों को पढ़ाने का काम शुरू किया। यह काम बहुत मुश्किल था क्योंकि उस जमाने में कोई भी अपने लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहता था। लड़कियों को ना पढ़ाना तो लोगों की गलत सोच थी। यह सोच तो बिल्कुल गलत थी। लोगों की इस सोच को बदलने के लिए उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह भारत में लड़कियों का पहला स्कूल था जिसमें 9 लड़कियों ने एडमिशन लिया। सावित्रीबाई उन्हें पढ़ाती थीं और वे उस स्कूल की प्रिंसिपल भी बनी। इस प्रकार वे देश की पहली शिक्षिका बन गईं। वे बच्चों से कहती थी, चलो पाठशाला चले। पहला काम पढ़ाई का, फिर करो खेलकूद। मिले वक्त पढ़ाई से तो फिर करो घर की साफ सफाई। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किए वे आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रसिद्ध शिक्षक, विद्वान और समाज सुधारक थे। इनका जन्म 26 सितंबर सन 1820 में बंगाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। इनकी माता बहुत अच्छे विचारों की थी। सभी का सम्मान करना, अपना काम स्वयं करना, यह शिक्षा उन्हें अपनी माता से ही मिली थी। बचपन से ही ईश्वर चंद पढ़ने लिखने में होशियार थे। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। तब तो उनके सभी अध्यापक उनसे प्रसन्न रहते होंगे। हाँ, क्यों नहीं। जानती हो, जब उनके अध्यापक उन्हें कोई भी पाठ पढ़ाते तब वे ध्यान से सुनते और जल्दी सीख जाते थे। ये पढ़ने लिखने में होशियार थे, इसलिए इन्हें बहुत सारी स्कॉलरशिप भी मिलती थी, जैसे परीक्षा में अव्वल आने के लिए, सुंदर लिखाई के लिए और अन्य प्रतियोगिताएं जीतने पर भी इन्हें स्कॉलरशिप मिलती थी। क्या तुम्हें पता है, इनका नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय से ईश्वर चंद्र विद्यासागर कैसे हुआ? मुझे पता है, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब वे कॉलेज में पढ़ते थे तब उन्हें कई विषयों में शानदार प्रदर्शन करने के कारण विद्यासागर की उपाधि प्राप्त हुई। विद्यासागर का अर्थ है ज्ञान का सागर। जानती हो, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली भी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि उन्होंने बंगाली वर्णमाला का सुधार किया। इस वर्णमाला में 12 स्वर और 40 व्यंजनों को रखा। इससे बंगाली भाषा सीखना तो आसान हो गया होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। उन्होंने बंगाली अक्षरों को सिखाने और लिखने के तरीके को सरल बना दिया। उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक बोर्नो परिचय बंगाली अक्षरों को सीखने के लिए आज भी उपयोगी है। ये एक अच्छे अध्यापक थे। वे अपने विद्यार्थियों को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाते थे। इन्होंने बच्चों के लिए कई स्कूल भी बनवाए। चलिए, सादा जीवन उच्च विचार यानी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग
वाले इस महापुरुष के जीवन की एक घटना से हम भी कुछ सीखते हैं। एक दिन एक युवक विद्यासागर जी से मिलने उनके गांव आया। वह रेलगाड़ी से स्टेशन पर उतरा। उसके पास एक छोटा सा सूटकेस था। सूटकेस उठाने के लिए उसने कुली को आवाज लगाई, कुली कुली। पर स्टेशन पर कुली नहीं था। स्टेशन छोटा होने के कारण वहां ज्यादा लोग नहीं उतरते थे, इसलिए उस स्टेशन पर कुली नहीं था। कुली ना मिलने पर उस युवक को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, यह अजीब स्टेशन है, यहां एक भी कुली नहीं है। तभी उसी गाड़ी से एक आदमी उतरा। वह बहुत साधारण से कपड़े पहने हुए था। उसने आधी बाह का कुर्ता, धोती और पैरों में चप्पल पहनी थी। साधारण पोशाक वाला वह आदमी उस युवक के पास आया और बोला, क्या बात है भाई? युवक बहुत गुस्से में था। वह बोला, यह कैसा अजीब स्टेशन है, यहां पर एक भी कुली नहीं है। अब मेरा सूटकेस कौन उठाएगा? तब वह आदमी बोला, लाइए मैं आपका सामान उठा लूं। वह आदमी युवक का सूटकेस उठाकर स्टेशन से बाहर आया। जब उस युवक ने मजदूरी के पैसे देने चाहे तो वह व्यक्ति बोला, धन्यवाद, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कुछ दूरी पर वहां बैलगाड़ियां खड़ी थी। युवक एक बैलगाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। दूसरे दिन सवेरे वह युवक ईश्वर चंद्र के घर आया। घर के बाहर एक आदमी खड़ा था। यह वही आदमी था जिसने कल रात उसका सामान उठाया था। युवक बोला, क्या विद्यासागर जी यहीं रहते हैं? उस आदमी ने कहा, जी हां, आइए अंदर बैठिए। युवक ने फिर पूछा, विद्यासागर जी कहाँ हैं? उस आदमी ने कहा, मैं ही विद्यासागर हूं। यह जानकर उस युवक को अपने ऊपर बहुत शर्म आई और उसने विद्यासागर जी से माफी मांगी। फिर बोला, कल मुझसे भूल हुई। अब मैं समझ गया कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। इस प्रकार उस युवक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से अपना काम स्वयं करने की सीख ली। मुख पर शीतलता, जीवन में सरलता, ऐसा था व्यक्तित्व जिसकी हुई विश्व में चर्चा। मिसाइल मैन नाम मिला, दी बच्चों को कई प्रकार की शिक्षा। आज शिक्षक दिवस पर उनकी कर रहे हैं हम चर्चा। अच्छा, तो आप हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रही हैं? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। पर वे केवल राष्ट्रपति और वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक महान शिक्षक भी थे, जिन्होंने अपने जीवन की बातें बताकर हम सभी को शिक्षा दी। आपने बिल्कुल सही कहा।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बच्चों में सोचने की शक्ति, ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ाने से जुड़ी शिक्षा दी। उन्होंने स्वयं कहा, सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना सीखो। लेकिन आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं यह सोच रही हूँ कि इतने महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के भी तो कई शिक्षक रहे होंगे जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया होगा। हाँ, वैसे तो सभी शिक्षकों से कलाम जी प्रेरित होते रहे। इन्होंने अपने शिक्षकों से सुंदर लिखाई से लेकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना भी सीखा। मैं उनके जीवन में हुई एक वास्तविक घटना तुम्हें बताता हूँ। कलाम जी एक छात्र थे, तब उनके शिक्षक ने उन्हें एक विमान डिजाइन करने का कार्य दिया था। कलाम जी और उनकी टीम ने कार्य को आपस में बांटा और कार्य करने में जुट गए। अब कुछ दिनों बाद जब उनके शिक्षक ने कार्य की जांच की, तब वे बहुत निराश हुए। कलाम जी के शिक्षक ने उनसे कहा, अब्दुल, यह कार्य अच्छा नहीं है। मुझे तुमसे बेहतर काम की उम्मीद थी। मैं निराश हूँ कि तुम जैसा प्रतिभाशाली छात्र इस तरह का कार्य लेकर आया है। यह सुनकर कलाम जी उदास हो गए। कलाम जी ने अपने शिक्षक से डिजाइन को पूरा करने के लिए समय मांगा और उनसे कहा, सर प्लीज मुझे 1 और महीने का वक्त दीजिए, मैं इससे बेहतर डिजाइन बनाऊंगा। उनके शिक्षक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज शुक्रवार की दोपहर है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। यदि सोमवार की सुबह तक मुझे डिजाइन नहीं मिलता तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। यह सुनते ही कलाम जी अचंभित हो गए और उन्हें एक बहुत भारी झटका लगा। स्कॉलरशिप खोने के डर की वजह से वे और उनके सहयोगी रात भर नहीं सोए। वे सभी मिलकर 2 दिन तक दिन रात काम करते गए और तीसरे दिन भी कलाम जी ने केवल 1 घंटे का ही ब्रेक लिया। इस प्रकार लगातार बिना रुके काम करने के कारण उनका कार्य पूरा हो पाया। यह देखते हुए उनके शिक्षक ने कहा, मुझे पता था कि मैं तुम्हें एक मुश्किल कार्य दे रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम इस कार्य को दिए गए समय पर पूरा कर लोगे और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारा कार्य देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अपने शिक्षक द्वारा कहे इन शब्दों से कलाम जी को राहत मिली और वे बहुत खुश हुए। इस तरह कलाम जी ने अपने शिक्षक से कार्य को दिए गए समय पर पूरा करने की सीख ली और उन्होंने यह भी सीखा कि यदि हम प्रयास करें तो कोई कार्य नामुमकिन नहीं होता। हाँ, वाकई यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि शिक्षकों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने से विद्यार्थियों को अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। जिस प्रकार अब्दुल कलाम जी अपने शिक्षकों का आदर सम्मान किया करते थे, ठीक उसी प्रकार उनके छात्र भी उनका आदर सम्मान किया करते। कलाम जी को अपने छात्रों से बहुत लगाव था। वे कहते थे, अगर लोग मुझे अच्छे शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। शिक्षा और खेल के बीच परस्पर गहरा संबंध है। शिक्षा जगत में महान शिक्षकों के साथ साथ खेल जगत में भी
कई महान शिक्षक एवं कोच रहे हैं। आइए देखते हैं खेल जगत में ऐसे ही एक शिक्षक का प्रयास। अरे वाह, बैडमिंटन खेला जा रहा है। जी हाँ, मुझे यह खेल बहुत पसंद है। मुझे भी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जैसा खिलाड़ी बनना है। यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम समझते ही होंगे कि इन दोनों खिलाड़ियों की सफलता के पीछे इनके महान कोच रहे हैं। ये दोनों ही भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ओलंपिक सहित कई टूर्नामेंटों में पदक भी जीत चुकी हैं। और इन दोनों खिलाड़ियों के कोच रहे हैं पुल्लेला गोपीचंद। मैंने उन्हें टीवी में देखा है। वे एक पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है, साइना नेहवाल लगभग 13 वर्ष की और पीवी सिंधु लगभग 9 वर्ष की थी जब उन्होंने गोपीचंद जी से खेल सीखना शुरू किया। गोपीचंद जी खेल सिखाते वक्त बहुत सख्त और समय के पाबंद रहते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि वे सुबह 4:30 बजे ही अपने विद्यार्थियों को खेल सिखाना शुरू कर देते हैं। यह तो बहुत कठिन होता होगा ना? केवल इतना ही नहीं, वे अपने विद्यार्थियों के खान पान पर भी कड़ी नजर रखते हैं। उनके कमरों में जाकर देखते हैं कि किसी ने चॉकलेट या अन्य जंक फूड तो अपने पास नहीं रखे हैं। गोपीचंद जी खिलाड़ियों की दिनचर्या की छोटी छोटी बातें भी नोटिस किया करते हैं। छोटी छोटी बातें भी? यह कैसे संभव होता होगा? बिल्कुल संभव है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के घड़े को सुंदर सुडौल बनाने के लिए उसे सहारा देता है, वैसे ही शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देने के लिए कई प्रयास करते हैं। तुम्हें एक वास्तविक किस्सा बताती हूँ। एक बार रात को किसी समारोह में साइना जी अन्य लोगों से बातचीत कर रही थी। बातें करते करते बहुत देर हो गई थी। रात के 10 बज चुके थे। उन्हीं समय का पता ही नहीं चला। उसी समय गोपीचंद जी उनके पास गए और घड़ी की ओर इशारा किया। उस एक इशारे मात्र से ही उनकी विद्यार्थी यह समझ गई थी कि यह सोने का समय था। बस फिर क्या था, वे अपनी बात पूरी किए बिना ही वहां से चली गई। अरे वाह! एक और विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर व आज्ञा का पालन करना जरूरी रहा। वहीं दूसरी ओर शिक्षक का विद्यार्थियों पर कड़ा अनुशासन। यह बात जानकर तो मेरे अंदर भी अपने शिक्षकों के प्रति आदर व समर्पण की भावना जागृत हुई है। लड़खड़ाते हैं हम, थाम लेते हैं कि वो खो जाए राह, तो राह रोशन करते वो। कभी मुस्कुराते हैं वो, कभी गुस्सा करते हैं वो। हमें है यकीन हमसे प्यार करते हैं वो। दिए की ज्योति सी तुम्हें मोती, ये दुनिया इतनी हसीन ना होती। हम में भी
टीचर तुमसे ही पाया है सभी, ये भूलेंगे ना तुमको हम कभी। छोटे छोटे हाथ, छोटे से पाँव थे, नन्ही सी आँखों ने जब देखा था तुम्हें, न था मालूम कि तुम ही तो दोगे पहचान हम सभी को। इसलिए शुक्रिया दिल से तुमको, दिए की ज्योति सीप में मोती, ये दुनिया इतनी हसीन ना होती, हम में भी सलीका न होता, जीने का तरीका न होता। वो टीचर तुमसे ही पाया है सभी, ये भूलेंगे ना तुमको हम कभी। लड़खड़ाते हैं हम, थाम लेते हैं कि वो खो जाए राह तो राह रोशन करते वो। छोटे छोटे हाथ, छोटे से पाँव थे, नन्ही सी आँखों ने जब देखा था तुम्हें, वो टीचर तुमसे ही पाया है सभी, ये भूलेंगे ना तुमको हम कभी। शुक्रिया 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 शुक्रिया। To all the teachers we have met in this life, a very happy Teachers Day from all of us, and thank you for making us enable. Shukriya. We are ever grateful to the Almighty God for your presence in our lives, and have penned these prayers for you. Troubles come